Good evening, ladies and gentlemen. Is it wrong to ask someone's caste? Is asking someone's caste always intended with malaise in your heart? And how do you fight rights of the backward caste? And how do you do a caste census without asking somebody's caste? The parliament has become a battleground ever since BJP member of parliament and former sports minister Anurag Thakur took a whale jibe at Rahul Gandhi yesterday. The BJP MPs जिनकी जाति का कुछ पता नहीं वो भी जातिगत जनगणना की बात करते हैं remark has triggered a fierce war between the NDA and the India Alliance. The opposition has renewed the caste census pitch with Rahul Gandhi pledging that he will pass the caste survey bill in parliament one day. Rahul Gandhi's alliance partner Akhilesh Yadav has emphasized that inquiring about someone's caste on the floor of the house is off limits. But as the saying goes in politics, what goes around comes around. Take a look at the jung over jati. जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकते? अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, काहे भाषण दे रहे हैं भाई सदन में? जहां आपकी सरकार है करिए, हिमाचल में करिए, तेलंगाना में करिए, पंजाब में करिए, बंगाल में करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? और कर्नाटक में तो किया हुआ रखा है। जात जो पूछे राहुल की प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। It is unfortunate that the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, praises a speech which insulted the rights of Dalit, OBC and Adivasi. What has riled the opposition even further is that Prime Minister Modi endorsed the speech of Anurag Thakur, calling the video a must-hear. Prime Minister said that Anurag Thakur's speech is a perfect mix of facts and humor, exposing the dirty politics of the India Alliance. Congress claimed that sharing the video is a breach of parliamentary privilege by the Prime Minister. With the Prime Minister throwing his weight behind Anurag Thakur, an enraged Congress has now moved a privilege motion against Prime Minister, stating that the Prime Minister is promoting certain objectionable remarks deleted from the House records. Today, let's fact-check those who claim they are offended with the mention of caste, and I will reveal how the so-called self-custodians of the oppressed and the marginalized don't practice what they preach. What is branded now as an insult when it comes to asking about one's caste was openly practiced by Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav. In October 2023, at a press conference, Rahul Gandhi conducted an instant Dalit OBC caste survey. Take a look. दलित कितने? मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? In February 2024, Rahul Gandhi aggressively grilled a reporter during the Bharat Jodo Nyay Yatra by asking for the name of the journalist and the owner of his TV channel. The taunt triggered the Congress workers to manhandle this cry. Again, take a look. मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं।
Now let's see how Akhilesh Yadav, who made it clear in Parliament that asking anybody's caste is not in good taste and cannot be tolerated, was seen asking a journalist's caste and his name. Listen in. छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। So the legitimate question that we are asking on the news hour tonight, has BJP exposed India Alliance's hypocrisy on caste? That's the question and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate tonight, Shehzad Poonawala, national spokesperson of the BJP, Harshvardhan Tripathi, senior journalist Patabhi Ram Komareddy ji, national spokesperson of the TDP. Also joining me this evening, Dr. Ashutosh Verma, national spokesperson of the Samajwadi Party. Ashutosh, senior journalist and my colleague, also joining the show tonight. But my first question goes to Tehseen Poonawala. Tehseen Poonawala, supporter of the Congress Party, and Tehseen Poonawala, asking the caste is a problem. Today, that's what the Congress feels. In fact, a privilege motion has been moved against the Prime Minister for only tweeting the speech of Anurag Thakur made on the floor of Parliament. Tweeting is now a matter of privilege before the Speaker, and that also on the issue of caste, where Anurag Thakur took nobody's name, but Congress obviously felt that this question was for Rahul Gandhi. So I want to ask you a very elementary question. You want a caste census without asking for anybody's caste. How does that happen? Good evening, Navika ji. Thank you for having me on the show. And let me just explain to you how this happens. When a caste census, which the BJP promised, Rajnath Singh ji promised on the floor of Parliament when UPA was there in 2011 that they will release it in 2014 and subsequently 2018 as Home Minister. It will be released. They have the data. All errors have been removed, which they refused to do. When the BJP promised this, which they refused to do, the point is, in a caste census, you will do it to uplift people for justice. But when you ask people in a derogatory way, that is what we are fighting against. And let me give you data. And I want your viewers to Google or chat GPT or see the data. Let's take any state. Uttar Pradesh. How many DMs in Uttar Pradesh are from the SC community? How many SPs today are from the SC community or OBC community? How many vice chancellors in central universities, let's say, are from the SC community? Why are they not capable enough? That is what we are fighting against. We are fighting against to empower people, and the BJP, which shamelessly sitting on the caste census done by the Congress and does not want to release it. So when Rahul Gandhi asked a journalist on the streets of Uttar Pradesh, yes, आपका नाम क्या है, जाति क्या है, आप OBC हैं, आपका मालिक OBC हैं, was he empowering the journalist? And the journalist, and visuals stand testimony to the fact that the crowd around the journalist actually caught hold of him and started beating him up. And I want to ask you, was that empowering the journalist? When he called the Prime Minister कि वो OBC नहीं, वो तेली caste के हैं, was he empowering somebody? Empowering the Prime Minister when he mentioned their caste on streets of India? That is empowerment? May I answer that question? Very good question. Except that this is a fact that no journalist, and I don't say that you don't deserve to be on the position you're somebody who's broken the glass ceiling, but no journalist who's doing prime time television is a Dalit today. And I'm not making a personal one. Please don't interrupt me. That is something that we have to answer. Am I here because... No, you're not. No. Am I here because I'm a woman? Am I here because I belong to a certain class? I know you will not allow me to Am I here because my family income is a certain this level? This is how we are stopping me speak for Dalits. So why? Please allow me. I'm not. Why are you even asking this question? I'll answer it, but you must allow me to speak. This opposition to this voice being raised. I'm not saying you don't deserve. You've broken the glass ceiling. I have so much respect for you. But let me ask the second question right now. Akhilesh Yadav ji is an empowered
empowered person. Yet when Akhilesh Yadav ji leaves the chief minister's residence, the Shuddhikaran is done of the chief minister's residence. Why? Yet when Akhilesh Yadav ji goes to a temple, the BJP Karyakartas purified. Akhilesh Yadav ji, a former chief minister of the largest state in India, that is what we are fighting against. Navika ji, you've broken the glass ceiling. You deserve to be here. You keep saying glass ceiling. Where was the glass ceiling? I'm here only because I work. And I work probably well. And I work hard. Shehzad Poonawalla, why is it being so patronizingly said, oh, you've broken the glass ceiling, you deserve it? One second. I would apologize. Now I will not yield. One second. He's not yielding. No, I really want to apologize. I would never do that. You know that. Yes. Sorry. So don't mention glass ceiling 20,000 times. I will not be interrupted. I hope that. First of all, Anurag Thakur ji never asked for anybody to tell their caste. If I can play this video, let me play it. ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है. जो व्यक्ति अपनी जाति नहीं जानता वो करता है ओबीसी और जनगणना की बात. तो उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर वो गिल्टी कॉन्शियस है. 543 वहां पे एमपीज थे, किसी ने रिएक्ट नहीं किया. किसने रिएक्ट किया? जिसको हो सकता है अपनी जाति, अपने गोत्र के बारे में वो अनश्योर रहा हो. तो पहली बात तो ये क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए. दूसरी बात, आप कहते हैं कि सम्मान के भाव से पूछना चाहिए. तो जाति जनगणना जो पूरे देश में जाति पूछना चाह रहे हैं, उसको गाली मानते हैं क्या? वो गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं. और अगर आप स्वयं एक शिव प्रसाद को पूछते कि आपकी जाति क्या है और वो पत्रकार पीटा जाता है, वो सम्मान भाव से पूछ रहे थे. आप पूछते कि हाईकोर्ट के जजेस की जातियां क्या है, वो सम्मान भाव से पूछ रहे थे. आप एयरलाइन के मालिक को पूछते कि आपके पैसेंजर्स की जातियां क्या है, वो सम्मान से पूछ रहे थे. आप पूछते हैं कि भाई किसने कितना हलवा खाया है, कितना हलवा बटा है, वो सम्मान से पूछ रहे थे. अगर वो सम्मान से पूछना ही है तो पूछे ना कि 1951 में जातिगत जनगणना रोका किसने. पूछे 1961 में आरक्षण के खिलाफ लिखा किसने कि भाई जो आरक्षण पाते वो सेकंड क्लास होते हैं. नेहरू जी ने लिखा. 80 to 90 में 10 वर्ष अगर मंडल पर कुंडली लगाकर नहीं बैठे होते, पहले लागू हो जाती, 95 में लागू नहीं होती, और तब आज के अफसर जो होते हैं वो ओबीसी वर्ग से आ जाते. और चिदंबरम जी जब हलवा बांट रहे थे तो उनके अगल बगल में SC ST ओबीसी कौन से अधिकारी खड़े थे, जरा बता दीजिए. यहां पर तो पंकज चौधरी जो MOS फाइनेंस है वो खड़े थे. अच्छा, इन्होंने कहा कि देखिए हम तो दलितों की आवाज उठा रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है. नाविका जी आपसे, नाविका जी आपके चैनल ने मुझे लगता है सबसे ज्यादा उन 68 दलितों की आवाज उठाई जो तमिलनाडु में कलकुर्ची में मारे गए. राहुल गांधी का या अखिलेश जी का एक अधिकृत बयान हो तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा. 14,000 करोड़ रुपए SC ST फंड से काट कर डाइवर्ट कर दिए गए कर्नाटका में. टाइम्स नाउ ओनली चैनल टू पिक दिस अप. अखिलेश जी का एक बयान उस पर हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. 22,000 करोड़ का फंड तेलंगाना में SCs के लिए था, उसको 7,000 करोड़ कर दिया. उस पर अखिलेश जी ने एक बयान अधिकृत रूप से दिया हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. परंतु एक आखिरी बात, अखिलेश जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, नस फट रही थी कल उनकी. आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? अब सुनिए, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ. चलो सुनिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ. हाँ, मिश्रा जी. अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो. मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो. ये सम्मान भाव से तहसीन पूनावाला. और मैं पूछना चाहता हूँ, कर्नाटका में तो आपका हो गया है ना कास्ट सर्वे, रिपोर्ट कब जारी करेंगे? DK शिव कुमार ने अपोज किया. आशुतोष हिमाचल में क्यों नहीं करवाते? आशुतोष वर्मा जी, कल अखिलेश जी ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि किसी की जाति क्यों पूछी जा रही है, इट्स अगेंस्ट द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट. और अब आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज है और कैमरा ऐसी चीज है जहां आप ही के पुराने बयान निकाल कर बताया जा रहा है कि मिश्रा जी शर्म करो. I want to ask you, why are we getting into this? एक तरफ आप कहते हैं कि जाति जनगणना करो, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति की बात मत करो, जाति पूछो मत. आप सबकी जाति पूछ सकते हैं, आप सबको जाति पर कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपसे कोई अपनी जाति पूछेगा तो आप प्रिविलेज मोशन मूव करेंगे. ये किस तरह के दोहरे मापदंड? पर जाति नहीं पूछी किसी से, ये भी तो फैक्ट है. आशुतोष वर्मा जी, धन्यवाद. थैंक यू नाविका जी. सबसे पहले ये जो कल से पार्लियामेंट में हो रहा है, हम सबको समझना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. देखिए, 4 जून के बाद से देश की पॉलिटिकल हालात भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है, और इस देश ने समझा दिया है कि जिस प्रकार की विभाजन की राजनीति आप करते हैं वो हमारे देश में चलने वाली नहीं है. कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वन टू मैन हिटिंग के काम करती रहती है. पिछली लोकसभा में उन्होंने स्मृति ईरानी जी को तैयार कर रखा था राहुल गांधी को हिट करने के लिए.
इस बार वो काम अनुराग ठाकुर को दिया है। भविष्य उनको भी पता है, भविष्य आपको भी पता है, और ये जानबूझ के अनुराग ठाकुर को बीच में लाके ये काम करवाया जा रहा है, जिससे कन्वर्सेशन 1 to 1 हो। ये दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी में अनुराग ठाकुर जैसे लोग भी उनका जवाब दे सकते हैं। मोदी जी को तो सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने हर बार देखा है जब जब राहुल गांधी ने भाषण दिया है मोदी जी उठ के चले गए हैं। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। हम बार बार इस चीज के विरोध में हैं कि जातियों से संबोधन करने के लिए आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, लेकिन जातियों के हक की लड़ाई कांग्रेस लड़े चाहे न लड़े या अभी से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का उत्पन्न ही सामाजिक न्याय की लड़ाई से हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह सवाल उठता है कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, कि जब ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 13 पॉइंट रोस्टर लाते हैं तो एक बार भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठा पाते हैं। हमने लड़ाई लड़ी और 200 पॉइंट रोस्टर को वापस लेके आए। जाति का सवाल इसलिए होता है क्योंकि नॉट फाइंड सुटेबल की जो कैटेगरी बनाई है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की उत्पत्ति है। हमने इसलिए सरकार बनाया कि यूजीसी में बिना पीएचडी और बिना डॉक्टरेट के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में करके इन्होंने अपॉइंटमेंट्स किया है और पिछड़ों की जगह खाई है। इसलिए हम जाति का सवाल उठाते हैं। सरकारी नौकरियों को निजीकरण करके, प्राइवेटाइजेशन करके वहां का आरक्षण ये खा गए और डकार भी नहीं लेते हैं, इसलिए हम जाति की बात करते हैं। जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए। आईएएस में लैटरल एंट्री, जरा एक बार लिस्ट देख लीजिए नाविका कुमार जी, और मैं बहुत खुश होऊंगा कि टाइम्स नाउ इस पर कभी स्टडी करेगा कि आईएएस में लैटरल एंट्री हुई है, उसमें कितनी पिछड़ी जाति के लोग आज तक आ पाए हैं। तो जिस प्रकार से इस देश में आरक्षण पे कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी 2014 से परोक्ष और विपक्ष रूप से कर रही है, आज सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं देख रहा था अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। मुझे याद है कि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जातिगत जनगणना के लिए लोकसभा में साफ साफ बोला था कि आप ही के पत्रकार ने निकलते हुए पूछा कि जातिगत जनगणना पे आपका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि ये विभाजनकारी है, मैं देश में नहीं होने दे सकता हूं। लेकिन 2014 में जब ये आए तो अरुण जेटली जी ने साफ कहा कि मेरे पास यूपीए द्वारा 4,800 करोड़ का खर्च किया हुआ वो सारे आंकड़े हैं, हम देश को लेकिन बता नहीं सकते हैं। लेकिन जब पिछड़ों की लड़ाई लड़नी होती है, जब बात करनी होती, वोट लेना होता है, तो 2019 के चुनाव के पहले राजनाथ सिंह ने खड़े होकर बोला हम यूपीए द्वारा किया गया कास्ट सेंसस की हम रिपोर्ट भी देंगे और आगे भी जातिगत जनगणना देंगे। 19 से 24 आ गया और 24 से 25 आने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना से भाग रही है। आशुतोष जी एक मिनट आशुतोष जी, मेरे दो तीन सवाल हैं। एक सवाल कि ये आपकी कंपटीशन कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि आपने एक सेंटेंस में ये कहकर बता दिया कि कांग्रेस अभी आई होगी इस लड़ाई में, हम पहले से कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो आप ये तय करना चाह रहे हैं कि कौन बड़ा पॉलिटिकल फोर्स है, वो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी। शायद राहुल गांधी को ये समझना चाहिए जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि 1 to 1 मैन मार्किंग हो रही है और अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी के खिलाफ, इसमें क्या प्रिविलेज है? कोई पार्टी अपनी फ्लोर स्ट्रैटेजी कैसे करती है ये उसके ऊपर है। आप अपनी स्ट्रैटेजी कर लीजिए, आप किसी से किसी को कुछ बुलवा लीजिए, कोई रोक रहा है आपको? तो ये दोनों ऑब्जेक्शंस तो मेरे समझ में नहीं आती। तीसरी बात, आपने अगर सवाल उठाए हैं वो जवाब शहजाद पूनावाला देंगे कि लैटरल एंट्री में कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, आप तो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर बन के पढ़ाई करके बने और लोगों की चिकित्सा करते हैं, या कोई कास्ट की वजह से डॉक्टर बन जाता है? पढ़ाई तो उसे फिर भी करनी पड़ती है। और एक डॉक्टर अगर मेरिट और कास्ट के डिविजन्स भूल जाए, मैं डिविजन्स इन्हें कहते ही नहीं, अगर आपको बैकवर्ड को रखना है तो रखिए, जरूर रखिए, लेकिन बेसिक मेरिट तो देखेंगे ना किसी का। क्या इस देश में जाति की बात अब जब करेंगे तो जाति पूछना मुहाल हो जाएगा? और मेरा सवाल बहुत सटीक था। अखिलेश यादव जी ने जब कहा मिश्रा जी शर्म करो मिश्रा जी, ये क्या इज्जत दे रहे थे किसी को जाति पूछकर, नाम पूछकर? ठीक है नविका जी, आपके 3-4 सवाल हो गए। पहले सवाल जो आपने मुझसे पहले पूछा
कि क्या कांग्रेस से आप कंपटीशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूत है, उसमें विभाजनकारी कोई नीति काम नहीं करेगी। अब कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की नीति की तरीके से जातिगत जनगणना का साथ दे रही है, तो दोनों साथ हाथ में जुड़ेंगे और दोनों हाथ साथ आगे बढ़ेंगे, इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो कंपटीशन की बात खत्म हो गई है। नंबर 2 चीज आपने बात करी कि समाजवादी पार्टी, दूसरा सवाल था कि आपने शायद मेरिट की बात करी। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात, अगर मैं डॉक्टर हूं, मैं जो पढ़ाई करके आ रहा हूं और जो अति पिछड़े, जो दलित हैं, जो पढ़ाई वो करके आ रहे हैं, और जो अगड़े हैं जिनको ज्यादा सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं है, उनकी लड़ाई कहां से शुरू की गई है, यही सामाजिक न्याय का बेस है। और बार बार इस बात पे सवाल उठाना कि पिछड़ों ने गलत किया है या पिछड़ों की मेरिट कम है, तो मैं आपको बता दूं, 2018 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने पाया कि एसटी, एससी और ओबीसी के इंजीनियरिंग छात्रों ने सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की तुलना में आगे उन्होंने काम किया है। और मैं इसका आपको वही बता देता हूं कि कई ऐसी स्टडीज हैं जो इस बात को कहते हैं कि दे आर एज फार एज द जनरल कैटेगरी अनरिजर्व। राजीव गांधी ने क्या कहा था अपने इंटरव्यू में, ये भी आपको याद होगा, जो नवभारत टाइम्स में कहा था। लेकिन शहजाद पूनावाला, चाहता हूं पहली बात, इन्होंने कहा, एक सेकंड आशुतोष जी, आप बड़ा लंबा आपने बोला, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए। नाविका मेरा समय है। इन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय, हम पूरा जवाब दे दीजिएगा शहजाद, आप पूरा जवाब दे दीजिएगा। नहीं नाविका, ये तो लंबा भाषण देने लग जाते हैं। नाविका, मैं आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बीजेपी को मौका दिया जाए अपने हिसाब से, प्लीज। आशुतोष जी, शहजाद जी को सुन लेते हैं, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। शहजाद, इन्होंने कहा हम सामाजिक न्याय की बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं समाजवादी पार्टी। रिजर्वेशन प्रमोशन किसने विरोध किया था? पॉइंट 1। पॉइंट 2, जामिया एएमयू में जब रिजर्वेशन खत्म हुआ एससी एसटी का, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला, परंतु वो किया गया यूपीए के जमाने में जब ये समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही थी। आज मैं क्लियर कट स्टैंड चाहता हूं समाजवादी पार्टी का कि क्या वो रिजर्वेशन इन जामिया एंड एएमयू इधर उधर जाके नहीं, सीधा इस पे स्पेसिफिक पॉइंट पे बोलना है कि करेंगे नहीं करेंगे। तीसरी बात, ये कह रहे कि हमने इनको फोर्स कर दिया, उनको फोर्स कर दिया। अरे भाई, कर्नाटक में हो चुका है कास्ट सर्वे, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। हिमाचल में, एक सेकंड बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हिमाचल में क्यों नहीं करवा रहे कास्ट सर्वे, उस पर कोई जवाब नहीं। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जातिगत। नाविका मैं खत्म कर रहा हूं, 15 नाविका ऐसे नहीं हो सकता, नाविका ऐसे नहीं हो सकता, इतना लंबा बोला उन्होंने सेकंड टर्न में। दूसरी बात, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विरोध नहीं किया है, उल्टा जातिगत जनगणना का ऑन रिकॉर्ड विरोध टीएमसी ने किया है। इसलिए इंडिया अलायंस ने कभी भी इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया। उल्टा अमित शाह ने तो कहा है कि हम तो इसके ठीक है, हमको कोई विरोध नहीं है इसका, और अगर ये लोग विरोध में नहीं है तो कर्नाटका में सर्वे जारी क्यों नहीं करते। और आखिरी बात, राहुल गांधी ने, देखिए आपके ऊपर उन्होंने गलत आरोप लगाया कि आपने क्वेश्चन किया मेरिट को क्वेश्चन केवल अति पिछड़े लोगों के राजीव गांधी ने किया, जिसने कहा था कि ये बुद्धू लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। यही चीज नेहरू ने की कि सेकंड क्लास लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहते। मैं आपसे पूछा, जामिया एएमयू में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एससी एसटी, और बताइए कर्नाटका हिमाचल का, इस पर जवाब दीजिए, आप इधर उधर मत जाइए। आशुतोष वर्मा जी। नहीं नाविका जी, आपने भी सवाल पूछा और मैंने भी सवाल पूछा, एक मुंह में एक शब्द नहीं निकला। 13 पॉइंट रोस्टर पे, लेटरल एंट्री पे, नॉट फंड सूटेबल पे, प्राइवेटाइजेशन पे, आईएएस में लेटरल, खुद एक तो सवाल का जवाब दे। अरे हमारे यहाँ तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है भाई। आपके यहाँ तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ओबीसी है क्या? बताइए भाई, हिमाचल के सुक्खू जी ओबीसी है क्या? आपके नेता प्रतिपक्ष ओबीसी है क्या? अब बताइए ना कि आपने ओबीसी के लेकर रिजर्वेशन प्रमोशन किसने रोका? अब आप चैलेंज दे सकता हूं शहजाद पूनावाला को, नहीं नाविका जी, मैं चैलेंज दे देता हूं खुले आपके चैनल पे, शहजाद पूनावाला को 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में पता ही नहीं होगा। आप मेरे ज्ञान का टेस्ट क्यों ले रहे? क्योंकि मैं पसमानदा मुसलमान हूं। अगर पसमानदा मुसलमान को अक्ल नहीं, अति पिछड़ा जो होते बुद्धू होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं रिजर्वेशन लेने वाले, भाई कितनी गालियां बकोगे हमें? आप बताओ कर्नाटका हिमाचल में क्यों नहीं करते? आप बताइए कि क्यों आपने रिजर्वेशन मैं क्योंकि मुसलमान हूं, मुझे बुद्धू बता रहे हो क्या? मैं मुसलमान हूं तो मैं बुद्धू हूं, मैं मुसलमान हूं तो बुद्धू हूं। नहीं, ये नहीं चलेगा, मुसलमानों को बुद्धू बोला जा रहा है। कोई नहीं, 20 नहीं भाई, कोई किसी एक मिनट, इसको विक्टिम कार्ड कहते हैं। अच्छा जी, नहीं तो मुझे ये बता दीजिए ना, अखिलेश जी क्या खेल रहे थे? जाति पूछ ली, और वहां मिश्रा जी को शर्म नहीं आती, ये क्या था आशुतोष जी?
नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ कि आप पिछड़ों का हक में आप मारने के पीछे क्यों तुले हुए हैं? आप जवाब अखिलेश जी का नहीं दे रहे, आप अखिलेश जी का जवाब नहीं दे रहे, तो इसीलिए मैं कोमा रेड्डी जी से पूछूंगी। कोमा रेड्डी जी, हाउ डज अ कास्ट सेंसस टेक प्लेस विदाउट आस्किंग द कास्ट? Number one. Number two, the issue is of a privilege motion that has been moved against the Prime Minister. Number one, no names were taken. How is there a privilege motion? I don't know. It's the authority of the Speaker to decide. But so far, no statement has been expunged. And that is also the right of the Speaker. So nothing has been expunged. If the Prime Minister retweets it or tweets it, where is the privilege? And tweeting something is social media, which is something that happens outside of the parliament. How does that come within the purview of privilege? Elementary things that I'm unable to understand despite having at least 25 years of experience of covering parliament. I'm not able to understand this. Can you please explain? Narika, good evening. At the beginning of the show itself, you asked this very basic elementary question. How does a caste census happen without knowing the caste of an individual? That was a very simple question, and unfortunately, my friend in the panel is unable to answer it. So that is the same question everyone is asking today. Recently, in a press conference, I've heard Rahul Gandhi saying that the Congress Working Committee unanimously supports the caste census. It is a very progressive and powerful step to eliminate poverty in the society, and all the Congress ruled states should really gear up. And he also went on to say that, addressing the BJP, that you either do it or get out of the way. We will do it. So if he's so strong about, the caste census, is it not hypocrisy today? If the same question comes to you, you feel offended. How does a caste census happen without knowing the caste of an individual? Why should you feel offended? What happened in the Bharat Jodo Yatra, Mr. Rahul Gandhi? What are the questions you posed to the journalists in your Bharat Jodo Yatra? You are not doing the Jodo thing there. You are trying to divide. Straight away you are asking the journalist, आपका जाति क्या है? आपका मालिक का जाति क्या है? So is this not hypocrisy? And he even went on to question the caste of the finance ministry officials. अगर राहुल गांधी आपको सबका जाति जानने का इतना शौक है, तो आप ही बताइए उसमें क्या गलती है? Today we can proudly say that the president, the honorable president of India, is from a scheduled tribe. We are proud of it. The honorable prime minister is from a backward class. We are proud of it. We would also like to know from where the leader of opposition has come. Hypocrisy. What is wrong in it? When they are so proudly saying that a scheduled tribe woman has become the president of this country, don't we want to know who our leader of opposition is? Why are you feeling offended? I would like to Absolutely. Ashutosh and Well said, Mr. Koma Reddy, and that is my question to Ashutosh, my colleague, my friend, senior journalist. And Ashutosh, I'm not somebody who's opposing social justice. There must be social justice. People who haven't had the opportunities must get equal opportunity, whether they are from a backward caste or whether they are from a less, endowed economic strata. Whatever be the reason for their social backwardness, they should get equal opportunity and they should be brought forward. Let's end that debate. That must be done. And what should be the reason on which, or what should be the points on which this should be based? Economic, social, be my guest. Let's have a debate. Let's figure that out. And let's etch that in stone. Having said that, I want to only come to the hypocrisy that's happening here. Hypocrisy when Rahul Gandhi wants to know the castes of judges, castes of officials, bureaucrats, IAS, journalists. He wants to know everybody's caste, and he doesn't ask it in a manner that is, courteous. You know how he spoke about the journalists on the streets during the Bharat Jodo Yatra. You know how he spoke about the Prime Minister's caste. Well, if you can speak like that, if somebody refers to your caste,
Why is there so much of objection to that? That is the nuance, if it is a nuance, that I can't understand. जाति मत पूछो जी, पर जाति की राजनीति करो, कास्ट सेंसस करो और आप सबकी जाति पूछो, आपकी जाति कोई ना पूछे। ये क्या मतलब है भाई? नाविका जी, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि जम के जातिवाद होना चाहिए, खुल के जातिवाद होना चाहिए। जो लोग जातिवाद के खिलाफ बोलने की बात करते हैं और जाति को, समाज को बांटने की बात करते हैं, दरअसल हिपोक्रेट्स तो वो लोग हैं, क्योंकि वो अपने बहन बेटियों, भाई बहनों की शादी बिना गोत्र देखे, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, वहां मैट्रिमोनियल में जाति बहुत साफ लिखी होती है। तो पूरा समाज तो जाति से ही चल रहा है और हम उसका विरोध करने की बात करते हैं। मुद्दा जाति का नहीं है और मैं घोर जातिवादी अपने आप को मानता हूं। मुझे सबकी जाति पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को तय कर रहा है, हर चीज तय कर रहा है। अगर हमारे घर की बेटी किसी दूसरे जाति के बेटे से शादी कर लेती है तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। यही होता है ना। या जो जिस लड़के ने लड़की से प्यार किया उसको गोली मार दी जाती है। जाति के आधार पर तो होता है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। सवाल यहां पे दूसरा है, और सवाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शुड लुक विद इन two issues. One, what is Bharatiya Janata Party's stand on the caste census? Whether they are in favor of the caste census or not in favor of the caste census. If they are in favor of the caste census, when they are going to have a caste census across the country? Point number one. Point number two, I think Samajwadi Party and the Congress and Nitish Kumar, they have done a smart thing. They are doing a smart politics. Because सामाजिक न्याय की लड़ाई, पिछड़े दलितों और आदिवासियों की जो बात कर रहे हैं, दिस इज टू ब्लंट बीजेपी's हिंदुत्व. द मोर इट इज डिस्कस्ड, द मोर इट इज डिबेटेड. लुक एट हाउ राहुल गांधी रिएक्टेड यस्टरडे. ही डिड नॉट से कि आपने मेरा अपमान किया. उन्होंने कहा कि जो पिछड़े दलितों की बात किया जाती है उसका अपमान किया जाता है. अगर यह बात बीजेपी को समझ में आ रही है कि राहुल गांधी 80% लोगों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पिछड़े दलितों आदिवासियों की बात कर रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स उनके अपने खोए सामाजिक आधार को लाने की पॉलिटिक्स है, अगर ये बात बीजेपी अगर समझ जाए तो मुझे नहीं लगता अनुराग ठाकुर के बोलने की जरूरत है, प्रधानमंत्री को एंडोर्स करने की जरूरत है. मैं इसको प्रधानमंत्री का और अनुराग ठाकुर का आत्मघाती कदम मानता हूं. कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मार रहे हैं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा. इज दैट ट्रू हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ज्यादा एक्सपोज हुआ या बीजेपी ज्यादा आत्मघाती हमला कर चुका है, इस पे ही डिबेट हो जानी चाहिए. देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर आशुतोष जी को लग रहा है कि बीजेपी आत्मघाती कदम उठा रही तो फिर तो अच्छी बात है. आशुतोष जी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि बीजेपी आत्मघाती कदम उठा रही है. राहुल गांधी सत्ता में आ जाएंगे. और ये भी अच्छा लगा सुनकर कि जिन आशुतोष जी ने अपने नाम के आगे से जाति हटा दी थी, वो कह रहे हैं खुलकर जातिवाद होना चाहिए. तो दो चीजें बड़ी अच्छी रही. अब जरा मैं 2-3 चीजें बताता हूं, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए आगे के लिए. मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो उनके चीफ सेक्रेटरी होते हैं नृपेंद्र मिश्रा. तो मिश्रा बड़े कि यादव बड़े? मायावती के सबसे नजदीकी और सबसे विश्वस्त हैं सतीश मिश्रा. तो मिश्रा बड़े कि मायावती बड़ी? जाटव. अखिलेश यादव, डिंपल जी भी सांसद हैं और बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत सुंदर लगते हैं दोनों. वो राजपूत जाति से हैं, तो राजपूत बड़ा कि यादव बड़ा? शाहरुख खान की पत्नी ही गौरी, और मुझे जहां तक ध्यान में हो ब्राह्मण है, तो शाहरुख मुसलमान, गौरी ब्राह्मण. मुख्तार, उनकी पत्नी हिंदू. शाहनवाज, उनकी पत्नी हिंदू. जो हलवा जाति पूछा वो सारे के सारे अलग अलग जातियों के थे, तो फिर राहुल गांधी को इतनी तकलीफ क्यों? पूछा नहीं जाति उनको, लेकिन अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो पहले तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा ना, कि अपने विद इन ऑर्डर आए ना. ऑर्डर बाहर को कैसे दे सकते? कहा जाता ना कि अपने अंदर से कुछ तैयार कीजिए. पीएम कौन है? ओबीसी. कहते हैं तानाशाह है. इस देश को एक तानाशाह पिछड़ी जाति का पीएम चला रहा है. यानी इस देश की पूरी राजनीति, पूरी राजनीतिक व्यवस्था तानाशाही तरीके से पीएम चला रहे हैं, पिछड़ी जाति के हैं. 8 अभी राज्यपाल बने. उन राज्यों के राजभवन में बैठेंगे, सबसे ऊपर कुर्सी लगेगी, सबसे सम्मान से बैठेंगे. किसने तय किया? किसी के उससे नहीं गया है.
राष्ट्रपति को संविधान ने जो आदेश दिया है उसके तहत ये 8 राज्यपाल बने। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती जाति जनगणना हो जाए। सारे लोग जो कह रहे हैं मुंह की खाएंगे, क्योंकि 80-20 की लड़ाई है ही नहीं। अगर 80-20 की लड़ाई होती तो 37% ऑफ द पॉपुलर वोट वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। कैसे 80-20 की लड़ाई? बिल्कुल बेसलेस बातें करते हैं। जाति के आधार पर इनका चश्मा बहुत पुराना है। टेस्ट कराएं, चेंज कराएं। ये 90 के दशक की राजनीति नहीं है। और अगर बीजेपी को आत्मघाती लग रहा है आपको, तो आत्मघाती नहीं थी तो कैसे सीटें घट गई झूठ बोल बोल के, अफवाह फैला फैला के। और मैं फिर से कह रहा हूं, असली गड़बड़ यह है कि जाति के नाम पर आप अखिलेश यादव की तरह, मिश्रा हो शर्म आए, जलील करते हैं। जाति के नाम पर जलील करने वाली, अपमानित करने वाली राजनीति राहुल गांधी करते हैं। पिछड़ी जाति के एक पत्रकार को पिटाई करवा देते हैं सरेराह, वो जलील करने वाली राजनीति। इस घृणा की घिनौनी जहर वाली राजनीति से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बाहर आना चाहिए। देश बहुत आगे चला गया है। आज हम पूछ के जाते हैं क्या सोसाइटी में, यहां पूछते 1 करोड़ वाले घर की सोसाइटी में, 2 करोड़ वाले घर की सोसाइटी में, 5 करोड़ वाले घर की सोसाइटी में, 10 करोड़ वाले घर की सोसाइटी में। हम तो नोएडा में और मुंबई भी 4 साल में रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि आप सोसाइटी से जान जाएंगे कि उसका क्लास क्या है। क्या वहां जाति के आधार पर होता है क्या? क्या आप 5 करोड़ रुपए जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें कोई फर्क पड़ जाता है क्या? और मैं बता दूं कि उसमें ऐसे बड़े बड़े लोग हैं कि जिनकी जातियों का बगल में कोई जाटव रख रहा है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई मुस्लिम है। सवाल यह है कि क्या 75 वर्ष बाद इस देश में राजनीति करने का राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कोई जरिया नहीं मिल रहा है? वो जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं। आखिरी बात, उसका जवाब सब मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी जो आशुतोष जी कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता तय करना पड़ेगा ना भाई। यादव नहीं करता ना जाटव में शादी, जाटव नहीं करता ना पासवान में शादी, लेकिन चिराग पासवान की शादी होगी तो कौन नहीं करेगा? रामविलास पासवान की पत्नी क्या वो कोई दलित है? नहीं है, वो तो पंजाबी हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के जो एक जिसको कहते हैं कि सोशल फैब्रिक को जिसने एडजस्ट कर लिया है, जिसने माना कि जाति के आधार पर बहुत से लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, हम उनको स्वीकार करेंगे। इस देश ने स्वीकार किया। ये कुछ लोग राजनीति करते हुए जाति के नाम पर बांट रहे, जहर फैला रहे। जाति जनगणना में कोई दिक्कत नहीं, एक सर्वे करके बिहार में देख लिया हमने, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। बहुत से हाथ उठ रहे हैं। आशुतोष, नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी अच्छे मित्र हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक पेंट से सब कुछ ब्रश कर दिया कि इस देश के अंदर जातिवाद तो है ही नहीं है। ये मैंने कहा है ही नहीं जातिवाद, क्योंकि चिराग पासवान की शादी किसी और से हो जाती है। मैंने कहा ही नहीं था। चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं ना जातिवाद क्या होता है। इस देश के अंदर जाति के नाम पे लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है। कितनी? इस देश के अंदर लड़कों को गोलियां मारी जाती हैं। इस देश के अंदर साथ नहीं होता। सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, तो आप जाति और बढ़ाएंगे इसलिए? मैं तो खुलेआम कहता हूं। मैं कह रहा हूं आप जाति कम करेंगे ना धीरे धीरे। सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूं इसका। मैंने कई बार बोल चुका हूं, फिर मैं बोल देता हूं। इस देश के अंदर जातिवाद बढ़ना चाहिए ताकि दलितों पिछड़ों को यह बात समझ में आए वो कौन लोग हैं जो हजारों साल से दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे थे। यह हकीकत लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब जब पिछड़ों दलितों के जाति के बारे में बात होती है उनको अपमानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश से मैं जानता हूं कि किसी दलित जाति, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी इससे निकलकर आगे बढ़ रही है, आप पीछे लेकर जा रहे हैं। पता नहीं, मैं अवसर दीजिए मुझे आशुतोष जी की बातों का जवाब देने का अवसर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आशुतोष जी, मैं आपकी बातों का जवाब देने का प्रयास करना चाहता हूं। हालांकि घर की लड़कियां, चलिए आशुतोष जी मैंने सुन लिया है। नाविका 20 सेकंड का अवसर दीजिए। उदाहरण छोड़ दीजिए, 20 सेकंड का अवसर दीजिए। 20 सेकंड का अवसर दीजिए। कुछ एक ऐसी चीजें होती होंगी, लेकिन बहुत सी चीजें सुधर भी चुकी है। आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ की कहानी नहीं देख रहे। मैं 20 सेकंड का अवसर चाहता हूं। मैं आशुतोष जी की बात को नहीं काटूंगा जैसे आप और हर्षवर्धन जी कर रहे हैं। मैं आशुतोष जी की बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आशुतोष जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जातिवाद घोर हम लोगों को उसका जो है प्रकोप झेलना पड़ रहा है। आशुतोष जी उसी तरीके से मैं हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, जामिया एएमयू में फिर वो जातिवादी मानसिकता नहीं बल्कि जो आरक्षण देना चाहिए एससी को वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप एक बार सीडब्ल्यूसी कोर कमेटी आरजीएफ फाउंडेशन जहां पर राहुल गांधी कर सकते हैं स्वयं अभी तुरंत
वहां पर SC ST OBC कितने लगाए? आप तो कह रहे हैं ना जाति जाननी भी चाहिए और जाति जो है उनको मौका मिलना चाहिए। तो मीडिया में आए, निजी सेक्टर में आए, सरकार में आए, उससे पहले राहुल जी ने कितने लोगों को बैठा दिया, उसका जरा जवाब। और मैं आपसे अपमान करते हुए नहीं पूछ रहा हूं, आप क्योंकि एक अच्छे विश्लेषक है, हाँ, उसलिए पूछ रहा हूं। तीसरी बात, आखिरी बात, आपने कहा कि कास्ट सेंसस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है। आशुतोष जी, इंडियन एक्सप्रेस में यह छपा है बड़ा बड़ा अमित शाह जी का बयान कि हम कास्ट सेंसस का विरोध नहीं करते, पर उसी इंडियन एक्सप्रेस में तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि हम कास्ट सेंसस के विरोध में। अब आशुतोष जी, बिना पर्सनल हुए, क्योंकि आप पर्सनल बातों में चले जाते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जामिया और AMU में आप बोलिए समाजवादी पार्टी को कि समर्थन करे SC ST रिजर्वेशन का। आशुतोष, कर्नाटक हिमाचल में कास्ट सर्वे का 20 सेकंड्स करे समर्थन, जरा बोलिए बोलिए। नाविका जी, बहुत अच्छी बात हमारे साथी लोग कहते हैं। मैंने तो एक बार भी अपने में शहजाद का नाम नहीं लिया, एक बार भी हर्षवर्धन जी का नाम नहीं लिया। सवाल रेलेवेंट है ना, सवाल है। नो नाविका जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब मुझे मौका मिला, मैंने ना तो हर्षवर्धन जी का नाम लिया, ना शहजाद पूनावाला का नाम लिया। तो वहां पे राहुल का भी नाम नहीं लिया था। अनुराग ने राहुल का नाम नहीं लिया था। अनुराग जी ने राहुल का नाम नहीं लिया। अब ये लोग मुझे टारगेट करते हैं। अरे टारगेट नहीं कर रहे भाई, अपने विक्टिम मूड। अब देखिए, मैं मुसलमान, मुझे टारगेट किया तो मैं नहीं बोल सकता, पर आप टारगेट हो गए। सवाल पूछने पर टारगेट हो जाते हैं। वो राहुल गांधी भी टारगेट हो गए, हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल का जवाब मिश्रा जी जिनसे अखिलेश जी ने पूछा था वो टारगेट नहीं हुए। वो जो जर्नलिस्ट था जिसको सड़क पर पूछा जाना था वो नहीं टारगेट हुए। आशुतोष वर्मा जी, यहाँ सब जाति पूछने पर या जाति की बात पर सब टारगेट हो जाते हैं। जामिया AMU का सवाल पूछिए इनसे। एक मिनट, एक बात आशुतोष वर्मा जी, अभी जिस इंडियन एक्सप्रेस की ये बात कर रहे थे, और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बड़े पत्रकार हैं, विद्वान हैं, उनकी मैं बात का तर्क देता हूं और ये 4 लाइनें पढ़ता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इनका तर्क बिल्कुल गड़बड़ है। लिखा, इन तर्कों का मूल आधार अभिजात जातियों का दोषपूर्ण इसलिए लगता है कि जिन्होंने अभी तक अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषाधिकारों को नहीं छोड़ा है। इन विशेषाधिकारों को समझने के लिए नौकरशाही, आपकी मीडिया, न्यायपालिका, शैक्षिक संस्थानों आदि में उच्च जातियों के विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों की प्रतिनिधित्व कर विचार करें। ओबीसी भारतीय रेलवे A और रेलवे B की समूह कर्मचारियों में मात्र 8% हैं। कैबिनेट सचिवालय में 15% हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 8% है। और ये सब आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में अभी जारी किए। केंद्र सरकार में रोजगार में आज भी 27% की। मिश्रा जी को शर्म आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है ये समझा दीजिए। आंकड़े आपके सही हैं। नमिका जी, मेरी बात को बीच में मत काटिए और उसको हल्का मत कीजिए। मेरी बात को बीच में मत काटिए, हल्का मत कीजिए। हल्का नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की बातें हल्की कैसे हो सकती है? अखिलेश जी की बातें हल्की कैसे हो सकती हैं? वो जाति का लेक्चर दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता रहे हैं देश आगे निकल गया है, देश आगे निकल गया है। क्यों बोल रहे हैं? और ये जो आपने पूरा सिस्टम कॉकस को बना के रखा है, वो आपने कॉकस बना के रखा है, उसको तोड़ा जाएगा तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूं, कॉकस किसने बनाया? सरकार में तो आप रहे हैं यूपीए के। कॉकस किसने बनाया? सरकार यूपीए के में आप थे, आप उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन आप उसको गंगा जल नहीं। डॉक्टर वर्मा जी, आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया है कि अखिलेश जी शर्म करो मिश्रा जी क्यों कह रहे थे? शर्म करने की क्या बात थी? AMU पे जवाब नहीं, रिजर्वेशन प्रमोशन शर्म करने की क्या बात थी? कर्नाटक हिमाचल मंत्री वहां से निकलता है और अब गंगा जल से घर को धुलवाते हैं। लेकिन आपने आप नहीं बता पा रहे हैं। उसी मुख्यमंत्री पे तो सवाल है ना। मिश्रा जी, शर्म करो। कौन सी बात थी शर्म करने की? आपको भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछना चाहिए। अरे कौन सी इसमें भाजपा कहां से आ गई? गंगा जल से धुलेंगे आप वहां पे। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? ये तो सभी राजनीतिक दलों की अपनी लड़ाई है और उस लड़ाई में जाति गणना होगी या नहीं होगी, उससे क्या होगा इसकी बात हो रही आए थे। मैं साफ वो रिपब्लिकन आए थे घर धुलने के लिए। घर इसलिए गंगा जल से धुलवाया गया क्योंकि पिछड़े थे। एक सेकंड बता दीजिए किस अगले मुख्यमंत्री शर्म करो मिश्रा जी, पिछड़ों के बारे में कहा जा रहा था। शर्म करो मिश्रा जी, पिछड़ों के बारे में कहा जा रहा था। सवाल तहसीन पूनावाला जी इतना ही है,
दूसरों की जाति पूछेंगे तो कभी कोई आपसे पूछ लेगा। दूसरों के बारे में अगर आप बोलते हैं, आपको बुरा नहीं लगता, तो अपने बारे में बुरा क्यों लगता है? सवाल आज इतना छोटा सा ही है। Can I give the answer to that? Yes. The answer to that is it's very easy to compare, say, whoever, a forward person with a backward person like Akhilesh Ji or anyone else. But where the backward person starts from and where the forward person starts from, that's the difference that you're talking about. And I repeat my question. Please, no. We are always interrupted when we make these points. Please tell me, in the union government which appoints central government vice chancellors, why aren't there equal proportion of people from the SC? I only want to ask you, a journalist asking a question, if he is a Mishra ji, is he higher than a former chief minister? Is he higher than a two-time chief minister? No, I want to ask this of Harshvardhan Tripathi. No, Shehzad, I want to ask. Mishra ji, क्या अखिलेश जी से बड़े थे? नवका जी, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं और आशुतोष शर्मा जी ने बहुत ज्ञानवान बातें की। मैं बार बार यही कह रहा हूं, इनको खतरा यही है कि देश में जिन जातियों को पिछड़ी अनुसूचित जाति में कहा जाता है वो अब उस तरह से नहीं देख रही हैं। उनको उनकी हिस्सेदारी इसी 15-20 सालों में, 25 सालों में मिली है। ये जब जो वो आंकड़े बता रहे हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% हो गए, कहां से 27% हो गए? जरा वो भी आंकड़ा बताते आशुतोष शर्मा जी। उसको छिपाते क्यों है? क्योंकि वो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उसको पता है कि इस देश में ओबीसी का संवैधानिक दर्जा आयोग को मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि देश में ओबीसी और एससी एसटी के लोग मंत्रिमंडल में ज्यादा हिस्सा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एसटी महिला वो रायसीना पहाड़ी पर बैठी हुई जिसकी वजह से पूरे देश में संदेश चला गया है, इसलिए आपको ये मुश्किल हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आप टिप्पणी सिर्फ एक लाइन मुझे आप टिप्पणी करिए। ब्राह्मण मेरी जात के आगे लगा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक जातिवादी आधार पर भेदभाव नहीं किया। लेकिन आप में से जितने लोग हैं वो सब मुझे टारगेट कर रहे हैं। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों समाज में जहर भर रहे हैं। ये करना बंद कीजिए। 5 सेकंड। मैं फिर डंके की चोट पर कहता हूं, आज तक किसी जी को मिश्रा जी के नाम से संबोधित किया था, अपमानित नहीं किया जाता, लेकिन जब भी किसी दलित को किया जाता, अपमानित किया जाता। किसी दलित को किया जा रहा है? आप बेवजह नहीं खींच रहे। आप अखिलेश यादव पर एक शब्द नहीं बोल रहे। अखिलेश यादव ने मिश्रा जी का सम्मान किया, क्या बोलिए ना, क्यों नहीं? नाविका जी पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उस पत्रकार के साथ भी नहीं खड़े, बात कर रहे हैं, उनको आप पत्रकार के सवाल पूछने के अधिकार के साथ नहीं खड़े। I'm completely out of time. The fact of the matter is the fact that मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आज ये मिश्रा वर्सेस दलित की लड़ाई में आज जो स्पेसिफिक सवाल जो पूछे गए जामिया, एएमयू, सीडब्ल्यूसी रिजर्वेशन प्रमोशन पे, एक का जवाब ये जो हितैषी अपने आप को बताते हैं उन्होंने नहीं दिया। किसी मिश्रा का जवाब नहीं आया, किसी जर्नलिस्ट के जाति पूछने पर जवाब नहीं आया। सवाल सिर्फ इतना है, राजनीति कीजिए, आप सबको करनी है, ये आपका अधिकार भी है, ये आपका प्रोफेशन भी है, लेकिन एक जर्नलिस्ट को इस तरह से नीचा दिखाना, उसकी जाति पूछी जाए, उसकी जाति के बारे में कहा जाए, तब दर्द नहीं होता। दर्द होता है जब खुद की जाति पूछी जाए, तब आता है प्रिविलेज मोशन, एंड दैट इज द हिपोक्रेसी। वी लीव इट एट दैट। Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.